ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, एक स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करते हैं. जो रिलेशन था उसको आर से लिखते थे, कैपिटल आर. फंक्शन को स्मॉल एफ से डिनोट करते, कोलन एक्स टू वाई. एक्स पहले ए और बी यूज करते थे, हियर वी आर गोइंग टू यूज एक्स एंड वाई, सेट एक्स एंड सेट वाई. जो x का एलिमेंट है वो x होगा और y का एलिमेंट y होगा. So that is a standard form of writing a function. There is a function that is connected from x to y, that is relating elements from x to y. And the rule is y equal to f of x. Y equals to f of x. अब ये क्या है वो बताया जाएगा. This y is basically element of this and this x is basically element of this. तो जो x एलिमेंट है फर्स्ट सेट का वो y से कैसे कनेक्टेड है, दैट रूल, दैट रिलेशन, दैट फंक्शन इज डिफाइंड एज दिस f. सो लेट मी टेल यू. एक फंक्शन की बात अगर मैं करूं तो यू हैव डन सो मेनी फंक्शंस ऑलरेडी. You already know and already use so many functions. Like area of a square. Square का area क्या होता है? That is a square, side square. That is a function. That is a function because for every side you take, you will get one area and you will get a unique area, isn't it? मैं बोलूँ कि square का side length है 3 सेंटीमीटर, तो उसका area 9 ही आएगा. There will be an area and there will be unique area. So for every input you are getting a unique output. So that is a kind of function. Perimeter find करते हैं. Square का perimeter that is 4a. For every input you get an output. You have circle का area, circle का perimeter, quadrilateral, pentagon, hexagon, whatever you know. There are so many things you know, and all these formulae that you have done, that is actually called a kind of function. So let me take you. So the types of functions. ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है. एंड द फर्स्ट वन लेट्स से कांस्टेंट फंक्शन. द फर्स्ट वन लेट्स से इज अ कांस्टेंट फंक्शन. हाउ डू वी राइट? आई विल से f. Let me take the domain as set of all real numbers, say R, and codomain also let me take the whole set of real number, that is R. And the relation is कि y equal to fx, मतलब y is related to x. कैसे? y is equal to c. ये क्या बात हुआ? c में कोई x तो है नहीं. ओके, x का कोफिशिएंट 0 बोल सकते हो, x का पावर 0 बोल सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन से. तो दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट आर टू सेट आर, मतलब रियल टू रियल. रियल टू रियल में रिलेशन क्या कहता है? और रिलेशन, लेट मी टेल यू द डेफिनेशन. अ रिलेशन that relates any element to a fixed number is called constant function. Is called constant function. मतलब whatever input you take, you are always going to get the same fixed number, and that is called your constant function. For example, let's say कि there are so many numbers और साथ में एक है 2 और बहुत सारे numbers. यहाँ पे we have so many numbers. Now, if every single number is going to 2, every number is going to 2, मतलब a relation that relates any element to a fixed number 2 is called this constant function, because everywhere you are getting the same value, you are getting a constant value. In this case I can say f of x equal to 2.
x का वैल्यू कुछ भी लोगे, यू आर ऑलवेज गेटिंग 2. These are not 1 1 1 1. These are some elements. These are some elements, whatever you want. Or you can write y equal to 2 also. मतलब x, whatever x is, you are always getting y as a x. That is 2. So I can say f r to r fx equal to 2, or I can say f r to r y equal to 2, or I can simply say y equal to 2, or I can simply say fx equal to 2. वो बाद में बताया जाएगा ना. If I draw this, what do I get? अब x का वैल्यू whatever you take, whatever value of x you take, value of y is always coming to be 2. x का वैल्यू 1 लेंगे तो भी 2 आएगा, x का वैल्यू 2 लोगे तो भी 2 आएगा, x का वैल्यू 3 लेंगे तो भी 2 आएगा, x का वैल्यू -0.5 लेंगे तो भी 2. सो व्हाट वी आर गेटिंग एट इज, अगर ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, सो व्हाट वी आर गेटिंग इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आई कैन से कि दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन विच इज अ कांस्टेंट फंक्शन. ये उसका नोटेशन, ये उसका वेन डायग्राम और ये इसका ग्राफ. ऐसे ही वी आर गोइंग टू डू अराउंड 30 different functions. Around 30 different functions we are going to do for this. So this is your first function we are going to do next. And second function is identity function. आइडेंटिटी फंक्शन मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स द इनपुट एंड आउटपुट, मतलब x एंड y आर आइडेंटिकल. इफ दे आर आइडेंटिकल देन दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. मतलब जो फंक्शन है, लेट्स से अगेन r to r है and defined as y is same as x. Now I am going to skip writing fx. I will always write y equal to सीधा सीधा. If you want you can write fx equal to x also. If you want you can write y equal to x also. So this is x and y are basically same, identical. So this is called identity function. फॉर एग्जाम्पल अगर वेन डायग्राम में देखते हैं -1 0 1 2 3 डॉट 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 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट. तो if 0 connected to 0, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, -1 to -1, that is called identity relation. If I draw this, what do I get? For x equal to 0, y will be what? Y is again 0. ग्राफ बनाने का बेसिक आइडिया यू ऑलरेडी हैव. अपने ग्राफ बनाते आए हैं कैसे? वी टेक डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, we find corresponding values of y and we plot them. Suppose if you take x equal to 1, what will be value of y? Y is also 1. x को अगर 2 लिया तो y is also 2. 3 पे is 3. -1 पे -1. And if I join them, what do I get? I get this line. If you have done coordinate geometry, straight line, you already know that y equal to x is a line through origin at angle 45 degree. But here we are talking about this as identity function. If you want, you can also write fx equal to x. Slowly I am going to minimize these things. धीरे धीरे चीजों को छोटा करते जाएंगे. थर्ड के बारे में बात करते हैं तो that is called linear function. लीनियर फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शंस whose graph looks like a line, जिनका ग्राफ एक लाइन होगा, that is called linear function. And this is y equals to ax plus b. एक तो हमने सिंपल x, पहले तो हमने सिर्फ कांस्टेंट देखा, फिर उसको वेरिएबल में x में लेकर के आए. अब x का थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं एंड लेट्स कॉल इट ax plus b एंड दैट इज योर लीनियर फंक्शन. इसका ग्राफ इफ यू ड्रॉ इट विल बी ईदर लाइक दिस और इट विल बी समथिंग लाइक दिस और इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन, whatever it is. So this is a general situation. For example, if I take simply y equal to 2x minus 3, y equals to 2x minus 3, what does it look like?
If I put x equal to 0, I will get y equal to -3. If I take x equal to 1, I will get y equal to -1. If I take x equal to 2, I will get 2 2 are 4 -3 1, and then joining all these points I am getting this line. Now if I say we are having y equal to 3 minus x, if I take x equal to 0, y का वैल्यू क्या आएगा? y will be actually 1 2 3. If I take x equal to 1, I will get y equal to 2. If I take x equal to 2, I will get y equal to 1. If I join all these, I will get this line. So this is called linear function. अब ये वेन डायग्राम में भी ऐसा ही होगा, but let's skip this and come to the important portions. Important portions में बस ये होगा, उसका ग्राफ होगा और कुछ एग्जाम्पल्स होंगे. So these are some types of standard functions. Types of function नहीं, basically you can say some standard functions. तो linear हो गया. Then we have more and more coming. I said I will be discussing around 30 different functions. Okay, so next is fourth, and that is square function. Square function मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन याद करो, हमने कांस्टेंट फंक्शन में डेफिनेशन लिखा था, आइडेंटिटी फंक्शन में डेफिनेशन नहीं लिखा. अ फंक्शन दैट रिलेट्स एनी नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन. स्क्वायर फंक्शन में क्या होगा? अ फंक्शन दैट रिलेट एनी नंबर टू इट्स स्क्वायर. किसी भी नंबर को उसके स्क्वायर से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर फंक्शन. अगर मुझे लिखना हो तो आई कैन से y जो x से कनेक्टेड है, कैसे? x will be connected to what? x will be connected to its square, and that is x square, which is actually ry. तो y is connected to x कैसे? उसका स्क्वायर है, that's why it is called square function. If I draw this, for x equal to 0, I will get 0. For x equal to 1, I will get 1. For x equal to 2, I will get 1 2 3 4. For x equal to -1, we get -1 का स्क्वायर प्लस 1. x equal to -2 में I will get 4. If I join them, then I will get something like this, and that is y equal to x square का ग्राफ. This is basically a parabola. अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया हुआ है तो यू नो दिस इज अ वर्टिकल पैराबोला. अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल केस यू कैन कॉल इट. So that is square function. A function that connect any number to its square is called square function. इसका डोमेन को डोमेन वो सब लिखा नहीं है, और जो नहीं लिखा है और हमेशा वी कैन टेक इट एज R to R. तो डोमेन इज R, को डोमेन इज R, और फंक्शन जो भी है दैट वी कीप ऑन राइटिंग. The next part is fifth one, and that is called square root function. Square root function का मतलब हुआ y equals to this. This will take some time, ध्यान से देखना. This is also equals to x power 1 by 2. Actually, it is not. Root x is not equals to x power 1 by 2. Root x is not equals to x power 1 by 2. But होता तो सेम ही है. Actually not. As I say, square root of 4 and 4 power 1 by 2. 4 power 1 by 2 is actually plus minus 2. But radical sign 4 is only plus 2. It is only plus 2. The idea is कि this is called square root and this is called positive square root. Radical sign का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा in case of square root. And so when I say x square का root, x square का root will be positive x. But positive x means what? Positive x मतलब x. That is not true, because अगर x का वैल्यू -2 रखेंगे तो पॉजिटिव x का मतलब क्या हुआ?
पॉजिटिव x का मतलब +2, which actually we write in different form and that we call mod x. ये मॉडुलस फंक्शन अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन द स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शंस ओनली, सो दैट विल नॉट टेक मच टाइम. एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए है तो x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू होगा ±√a. ये एक स्टैंडर्ड बॉक्स है. जब भी कोई एक पार्ट मुझे बताना होता है तो आई कंप्लीट ऑल द पार्ट्स, सो दैट इज समथिंग फॉर यू. तो स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब y इक्वल टू रेडिकल साइन x होगा, ना कि x का पावर 1/2. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? y इक्वल टू x पावर 1/2 इज एग्जैक्टली सेम एज y स्क्वायर इक्वल टू x. और y स्क्वायर इक्वल टू x की बात करेंगे तो दैट इज लाइक दिस. x का वैल्यू 1 पुट किया तो y का वैल्यू +-1 आया. x का वैल्यू 4 पुट किया तो y का वैल्यू +-2 आया. x का वैल्यू 0 किया तो y का वैल्यू 0 आया. उनको ज्वाइन किया तो दिस इज द ग्राफ. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. If I put x equal to 0, I will get y equal to 0. If I put x equal to 1, I will get y equal to +-1. If I take x equal to 4, I will get y equal to +-2. Now joining them, I will get something like this. Now the problem is this is not a function. This is not a function. ये function नहीं है, because for every value of x we are getting two values of y. x की वैल्यू 0 के लिए चलो एक ही पॉइंट मिला, ओनली वन रूट, बट x इक्वल टू 1 के लिए वी गॉट y इक्वल टू +1 एंड -1. जबकि फंक्शन में रूल क्या था? फॉर एवरी x देयर विल बी यूनिक y. एक सिंगल इमेज होना चाहिए, y का वैल्यू यूनिक होना चाहिए. हियर वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. This is not a function. So function कैसे बनाए इसको? So any graph by some changes to the domain and codomain can be converted to function. Let's say कि ये R to R है. Let me change this to function जीरो टू इन्फिनिटी से r. अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? देयर आर टू रीजंस व्हाई दिस इज नॉट अ फंक्शन. फर्स्ट, फॉर any number except 0 we are getting two values of y, but it is मतलब it is not unique image. Second problem is कि for negative values of x there is no y, जबकि डोमेन की हर नंबर के लिए कोई ना कोई वैल्यू और यूनिक वैल्यू आनी चाहिए. फॉर एवरी एंट्री देयर शुड बी सम यूनिक आउटपुट, बट फॉर नेगेटिव एंट्रीज देयर इज नो आउटपुट. तो हमने एक काम किया कि नेगेटिव एंट्री के लिए तो आंसर आएगा ही नहीं, तो हमने नेगेटिव एंट्री हटा दिया. वी हैव रिमूव्ड द नेगेटिव एंट्रीज. नाउ वी कैन टेक ओनली एंट्रीज व्हिच आर पॉजिटिव. सो लेट्स से कि दिस इज द एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस इज नॉट देयर. अब ड्रॉ करेंगे, अगेन वी आर गेटिंग द सेम थिंग. स्टिल नॉट अ फंक्शन. एक प्रॉब्लम खत्म हुआ कि नेगेटिव हम नहीं ले रहे, बट अगेन वी आर गेटिंग टू वैल्यूज फॉर x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1.7, x इक्वल टू 5/2. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेंज समथिंग मोर. इसका कोडोमेन भी 0 से इंफिनिटी ले लिया, मतलब इट इज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट इज ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. नाउ इफ आई टेक x इक्वल टू -1, नो आई कैन नॉट टेक, बिकॉज डोमेन डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट. डोमेन कहता है 0 से इंफिनिटी में ही कोई नंबर ले सकते हैं. यू कैन ओनली टेक नंबर्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. सो लेट्स टेक 0. अगर x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 0 आया, दैट इज 1 पॉइंट. Now if I take x equal to 1, I will get y equal to +-1. But +1 is there, -1 तो लेना ही नहीं है. We cannot take -1 because that is not in the codomain. Now if I take x equal to 4, I will get +-2.
but minus 2 we cannot take, so what we are getting at is only unique values. आपको सिर्फ एक एक वैल्यू ही मिल रही है. And now what we can say, for every input of this function we are getting a unique output. For every input we are getting unique output. And so this was not a function, but now yes, it's a function. तो अब अगर हमें स्क्वायर रूट फंक्शन बोलना है, नाउ दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन. व्हाट आर दीज? दीज आर स्क्वायर रूट रिलेशन. दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन. तो स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब ये तो चलो हर जगह कॉमन है, बट ये आपको बार बार लिखना पड़ेगा. एवरी टाइम यू हैव टू राइट दिस कि f 0 to infinity arrow 0 to infinity y equal to x power 1 by 2 या फिर y square equal to x, that will be square root function. That's okay, no problem at all, we can write that all the time. But इतना frequently square root function यूज होता है, तो अगर कोई टर्म बार बार यूज होता है और इतना बड़ा है तो उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं. और शॉर्ट में करने का मतलब इस पूरे स्टोरी को we write as y equal to root x. This whole story is written as y equals to root x. Now you know that कि जब root x लिखा हुआ है तो x का वैल्यू we take only 0 to infinity और y का वैल्यू we only take 0 to infinity. So you will only get the positive values, क्योंकि नेगेटिव तो मैंने केस में से हटा दिया. So input will also be non-negative and output will also be non-negative. Non-negative और पॉजिटिव में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है जीरो का. अगर जीरो इंक्लूड करना है तो वी कैनॉट कॉल इट पॉजिटिव, सो वी कॉल इट नॉन-नेगेटिव, मतलब नेगेटिव छोड़ के बाकी सब कुछ. और अगर जीरो नहीं लेना है, वी हैव टू एक्सक्लूड जीरो, देन वी कैन कॉल इट पॉजिटिव. सो दिस इज नॉन-नेगेटिव टू नॉन-नेगेटिव. तो जब रेडिकल साइन एक्स होता है तो उसका वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव आएगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव. जबकि पावर 1/2 में प्लस माइनस बोथ आर पॉसिबिलिटी. तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन एंड दैट्स व्हाई रूट 4 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ +2 होता है. तो इनिशियली इट वाज नॉट अ फंक्शन, बट थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने के बाद वी कुड मेक इट अ फंक्शन. इट लुक्स टू मच वर्क टू राइट एवरी टाइम, सो उसका एक शॉर्टकट बना दिया. दिस मीन्स दिस. आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि व्हाट इज अ स्क्वायर रूट फंक्शन. And the next is sixth function, and that is quadratic function. Quadratic function आपको बहुत comfortably पता है because you have done it in class 10th also. तो quadratic function is y equals to ax square plus bx plus c. इसका ग्राफ भी आपको याद होगा. This is basically a vertical parabola, either upward or downward. This turning point is called vertex और vertex का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, -d/4a. जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था एक स्क्वायर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ दिस. c का वैल्यू 0, b का वैल्यू 0 एंड a इक्वल टू 1, सो दैट वाज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसमें ड्रॉ करने के लिए आई वुड प्रेफर अ कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट c विच इज 0, x को 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू c आ जाएगा. लेट्स डू वन कपल ऑफ एग्जांपल्स. y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और माइनस दिस. And second, y equal to x square plus x plus 1. That second one is very standard and you should always remember this. Now, when will be this upward? This will be upward for a positive and downward for a negative. Vertex find करते हैं, that will be minus b by 2a, comma minus d, and d is b square minus 4ac divided by 4a. That gives me 3/4
comma 32, 23, 23 by 8. ओके, नॉट ओके. ये माइनस माइनस प्लस आएगा तो यहां माइनस होगा, तो वर्टेक्स इज -23,8. कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट विल बी x को 0 किया तो y कम्स आउट टू बी -4. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ दिस. कोऑर्डिनेट इज 3/4, -23/8. Complementary point is 0, -4. Complementary point is 0, -4. वो -23/8 से थोड़ा नीचे होगा, because this is approximately -3, so -4 will be down. Now when we draw this, when we join this, it will be something like this and this. I am not going for so much detail because वो quadratic equation में हमने किया हुआ है. The next one is vertex comes out to be, everyone pause the video, try to find the vertex, try to draw the graph. Vertex आएगा -1/2, 3/4, complementary point 0, 1. So the vertex is -1/2, 3/4 and complementary point 0, 1. Upward parabola होगा because A is positive. Here it is downward parabola because A is negative. So that is your quadratic function. And the next is cube function या cubic function. Cubic function क्या करेगा? What does a cubic function do? What does a square function do? Square function क्या करता था? It connects every number to its square. And in cubic it will connect every number to its cube. मतलब x will be connected to x cube. So I can say कि x is usually connected to y, तो I can say y is equals to x cube. अब इसका ग्राफ बनाएंगे. If I take x equal to 0, I will get 0. For x equal to 1, I will get 1. For 2, I will get 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. For -1, I will get -1, and for -2, I will get -8. If I join all these points, it is something like this. What you see here, origin पे graph is almost horizontal. That is one thing you have to be very clear about this, कि जो cubic function का ग्राफ है वो usually आप लोग ऐसा बनाते हैं. This is the wrong graph. Actual graph will be at origin, it is almost horizontal. That point you have to keep in mind. So that is a cubic function. And eighth is cubic polynomial. Cubic polynomial. पहले हमने स्क्वायर फंक्शन पढ़ा था, फिर क्वाड्रेटिक पढ़ा. दैट वाज x square and then ax square plus bx plus c. 2 degree and then general 2 degree. Here we have cubic and now we have cubic polynomial, and that will be ax cube plus bx square plus cx plus d. इसका ग्राफ will be something like this, 1, 2, 3 part or 1, 2, 3 part. That depends on the value of ABC, but generally it looks either like first or like second. अब इसका एक्चुअल ग्राफ कैसा होगा, क्या होगा, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन ABCD. वो हम कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज्यादा करेंगे. फिलहाल के लिए बस इतना ही. एंड नेक्स्ट वन इज गेस. स्क्वायर फंक्शन था, फिर स्क्वायर रूट था और स्क्वायर पॉलिनोमियल था. हियर क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द नेक्स्ट वन इज क्यूब रूट फंक्शन. Cube root function is basically x power 1/3, which can also be written as cube root of x. या radical sign वाला concept नहीं है. That is simply a cube root of x written like that. If we draw this, it will be something like this, but tilted. इसको थोड़ा rotate करेंगे. It looks like, ध्यान से देखना, यहां पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल था, यहां ग्राफ ओरिजिन पे वर्टिकल होगा, तो इट लुक्स लाइक दिस एंड दिस. दैट इज योर ग्राफ ऑफ क्यूब रूट फंक्शन y equal to x power 1/3.
Yeah, this is horizontal and this is vertical. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 60 डिग्री नहीं होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री जैसा होगा. दैट इज वेरी फाइन पॉइंट जिसका कैलकुलस में काफी यूज आता है. तो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट इट. जस्ट लाइक पैराबोला में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या x स्क्वायर स्पेशल केस की बात करें तो पैराबोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में वर्टेक्स में इट वाज हॉरिजॉन्टल. अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात किया तो ऐसा होगा ना. सपोज कि वी हैव 4 डिग्री पॉलिनोमियल ax पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e. सपोज वी हैव 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री पॉलिनोमियल. तो देयर इज वन थिंग इज कॉमन इन ऑल ऑफ दिस कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल इज लाइक दिस ax प्लस b, सिंगल लाइन से बना. 2 डिग्री पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाज यूजिंग 2 लाइंस 1 and 2 और 1 and 2. क्यूबिक में देखो वी जनरली हैव 3 लाइंस 1, 2 and 3 और 1, 2 and 3. सिमिलरली 4 डिग्री में देयर विल बी 4 लाइंस 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 समथिंग लाइक दिस. 5 डिग्री में देयर विल बी 5 पार्ट्स, 6 डिग्री में देयर विल बी 6 पार्ट. इन जनरल स्पेशल केसेस भी होते हैं. 4 डिग्री में सिर्फ 2 लाइंस भी दिखते हैं. दिस इज ऑल्सो ग्राफ ऑफ x पावर 4. x पावर 4 का ग्राफ सीधा ऐसा भी हो सकता है. जरूरी चारों पार्ट होना कंपल्सरी नहीं है, बट इन जनरल इट इज लाइक दिस. सो दैट इज योर अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल यू कैन से. अगेन नेक्स्ट 10th, लेट्स से दैट इज modulus function. Modulus function is also called absolute value function. This is also called absolute value function. So any number, any relation, any function that connects numbers to its absolute value or its modulus value is called modulus function, and we write it as this within 2 vertical lines. इसका मतलब क्या होता है? मॉडुलस आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ है. इफ नॉट देन रेफर दैट. सो आइडिया इज कि अगर नंबर पॉजिटिव है या जीरो है मतलब नॉन नेगेटिव है तो इट बिकम्स नंबर इटसेल्फ. पॉजिटिव नंबर का मॉड मतलब मॉडुलस इज नंबर इटसेल्फ. और अगर नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर का मॉड इज नेगेटिव ऑफ द नंबर. What usually student tell कि पॉजिटिव नंबर का मॉड सर पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का मॉड सर पॉजिटिव. दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, बट उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे काम नहीं होगा. काम कैसे होगा कि पॉजिटिव नंबर का मॉड नंबर इटसेल्फ एंड नेगेटिव नंबर का मॉड नेगेटिव ऑफ द नंबर. देन सम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि सर ये तो नेगेटिव हो गया, माइनस है. नो, ओनली माइनस विल नॉट मेक श्योर कि नंबर नेगेटिव है. देखो x नेगेटिव है मतलब x का वैल्यू -1, -2, -3, -4 समथिंग लाइक दैट. x का वैल्यू नेगेटिव है और एक माइनस लगाया तो पॉजिटिव हो गया ना. So this is how we are going to use absolute value function. This is how we are going to remove this modulus sign for different cases. जो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में बेसिक में किया था और यहाँ भी अभी कुछ क्वेश्चंस में करेंगे. But before that, let me draw this. If I take x equal to 0, 0 का मॉड 0 होगा, 1 का मॉड 1 होगा क्योंकि 1 पॉजिटिव है तो नंबर इटसेल्फ. 2 के लिए 2 होगा, 3 के लिए 3 होगा. -1 के लिए -1 इज ए नेगेटिव नंबर तो उसका नेगेटिव -1 का नेगेटिव +1, -2 का नेगेटिव +2, and when I join this it looks like this. And no, you cannot join them smoothly because these are very few points. But अब जब बहुत सारे points mark करोगे तो you will see कि they lie on the line itself. They are not lying on a curve. These lie on the 2 straight lines which are perpendicular to each other. This angle 45, 45, 45, 45, and that is modulus function. मॉडुलस फंक्शन को हमें जब सिंप्लीफाई करना होता है, व्हेन वी हैव टू सिंप्लीफाई मॉडुलस फंक्शन, तो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड. एंड व्हाट इज दिस? कि व्हेन अ नंबर इज पॉजिटिव इट विल बी नंबर इटसेल्फ, एंड व्हेन द नंबर इज नेगेटिव इट विल बी
negative of the number. For example, if I say y equal to x minus 3 का mod है, तो what do I say? अब अगर नंबर का मॉड लेना है तो वो नंबर हमें पता होना चाहिए कि दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव. तो सपोज इफ आई से कि भाई x प्लस 3 इज पॉजिटिव और लेट्स से मोर क्लियरली नॉन नेगेटिव. अगर x प्लस 3 x माइनस 3 अगर x माइनस 3 पॉजिटिव है तो उसका मॉड क्या होगा? नंबर इटसेल्फ मतलब x माइनस 3. और इफ x माइनस 3 इज नेगेटिव तो इसका मॉड क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द नंबर मतलब माइनस x प्लस 3. वी कैन चेंज दिस टू x greater than equal to 3 and we can change this to x is less than 3. तो अगर x greater than equal to 3 है तो x minus 3, x less than 3 है तो minus x plus 3. Let's take one more example. x plus 1 का mod plus 2 minus x का mod into 2. Suppose this is a function. अब ये फंक्शन है तो वी आर गोइंग टू चेक दिस, वी आर गोइंग टू रिमूव दिस मॉडुलस. अगेन सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल एप्लीकेशन देख रहे हैं, ज़्यादा डिटेल आगे क्वेश्चंस में आएगा तब करेंगे. सो फॉर दिस व्हाट वी नीड इज वी नीड टू मेक श्योर, वी नीड टू नो कि x प्लस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है. वी हैव टू नो दैट 2 माइनस x पॉजिटिव है, 0 है या नेगेटिव है. फॉर दिस आई विल गेट अ बाउंड्री ऑफ x इक्वल टू माइनस 1. x इक्वल टू माइनस 1 पे इसका वैल्यू 0 है तो उसके आगे पीछे इधर प्लस होगा या माइनस होगा और वॉट एवर. सिमिलरली हियर वी आर गेटिंग अ बाउंड्री बाय यूजिंग द इक्वालिटी. कभी भी मॉड हटाना हो तो वी हैव टू नो कि वो नंबर कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है. व्हेन द नंबर इज पॉजिटिव द मॉडुलस विल बी नंबर इटसेल्फ, व्हेन द नंबर इज नेगेटिव देन द मॉडुलस विल बी नेगेटिव ऑफ द नंबर. अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव वैल्यू. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू नो कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, और उसके लिए वी नीड टू नो कि उसका वैल्यू कब 0 है, क्योंकि 0 जब होगा उसके आसपास ही पॉजिटिव नेगेटिव होना है. So I can do this in this fashion, but I am going to do it in a lot better way, and that is drawing the number line. जब भी मॉड रिमूव करना हो तो नंबर लाइन का एक सिस्टम फॉलो करते हैं. दैट वी कैन डू हियर ऑल्सो. नंबर लाइन बनाते हैं. ये मॉड हटाना है तो इस मॉड का जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट इन केस ऑफ मॉडुलस इज द प्लेस वेयर दिस मॉड इज इक्वल टू 0. और मॉड का वैल्यू 0 कब होगा? ये मॉड का वैल्यू 0 होगा x इक्वल टू 3. Now if I take any number after 3 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, so this is going to be a positive number and so its modulus will be x minus 3. If you take any number less than 3, let's take 2, let's take 0, let's take minus 5, let's take minus 2.7, whatever you take, it will be negative. और negative है तो उसका modulus हो जाएगा negative of the number, which is same here. Greater than equal to 3 के लिए x minus 3 and less than 3 के लिए minus x plus 3. Same we are going here also. तो there are two boundaries, एक है -1 और एक है 2. ऑब्वियसली पहले -1 आएगा और फिर 2 आएगा. तो देयर आर टोटल 3 पोर्शंस 1, 2 एंड 3. ये 3 पोर्शन में कोई भी एक नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर. सपोज वी आर टेकिंग एनी नंबर ग्रेटर देन 2. यू टेक वॉट एवर नंबर यू थिंक विच इज ग्रेटर देन 2 एंड फाइंड दिस. तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर, लेट मी टेक 5. इफ आई पुट 5 हियर, what do I get? If I take 5 तो 5 plus 1 6 आया. 5 plus 1 6 आया which is positive, तो उसका mod होगा number itself मतलब x plus 1. And if I take that 5 here, I will get 2 minus 5. 2 minus 5 is negative, और negative का mod negative of the number मतलब -2 plus x. Second portion की बात करते हैं. In this portion, take any number, not necessarily integer. You can take fractional, you can take rational, you can take irrational, whatever you want. But I am going to take 0. So that will be 2 times something plus something.
अब अगर 0 लोगे तो ये नंबर 0 + 1 पॉजिटिव आया तो नंबर इटसेल्फ, and 2 - 0 is also positive, and so again number itself. Now ये खुद से ट्राई करो, pause the video and try to write the values in this. I'm going to do this. -1 से छोटा कोई भी नंबर, let's take -2. आप -2, -3, -4, -10.7, -1000, million, billion, zillion, Brazilian, जो भी आपको पिक करना. So let's take -2. -2 + 1 is -1, which is negative, तो इसका मॉड होगा नेगेटिव ऑफ द नंबर, मतलब -x - 1. -2 - -2 is 4, which is positive, और पॉजिटिव है तो नंबर itself, that is 2 - x. Mod is removed. Now we can simplify this. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 3x. Here if you simplify, you will get x + 4, and here if you simplify, I will get -3x. Now think about it, take your time. -2 + 2 cancel हो गया, -2x - x is 3x. 2x and -x is x, 2 + 2 is 4. 2x and 1x is 3x, + 2 and -2 cancel. तो ऐसे भी अपना काम चल जाता है, but let me write it as what? When x is less than -1, अलग केस लेते हैं. -1 से 2 का केस अलग ले लेते हैं, और 2 से इन्फिनिटी का केस अलग ले लेते हैं. When we take x is less than -1, okay, when we take x is less than -1, the function comes out to be -3x. लिखा हुआ ये था, उसको सिंप्लीफाई किया तो -3x आए. When we take this, I will get x + 4. When we take this, I will get 3x. मॉड रिमूव हो गया, फंक्शन 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ. एक सिंगल मॉड होता है तो 2 पार्ट में स्प्लिट होता है. 2 मॉड्स है तो 3 पार्ट में आएगा. 3 मॉड्स होंगे 4 पार्ट में आएगा. इन जनरल स्पेशल केसेस आर देयर. कैन वी ड्रॉ दिस? अगर मुझे ये ड्रॉ करना हो, मतलब आई विल ड्रॉ दिस, तो लेट मी ड्रॉ दिस. इफ यू सी क्लोजली, है तो ये लाइन सी, y = ax + b, y = ax + b, y = ax + b, और लाइन ड्रॉ करना बहुत आसान होता है. लाइन ड्रॉ करने के लिए व्हाट वी डू इज वी सिंपली पिक एनी 2 पॉइंट एंड दैट्स इट. 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बन जाएगा. तो वी हैव टू टेक अ ब्रेक एट -1 and 2. तो लेट्स से -1 और 2 पे वैल्यू क्या आएगी? अब एक सेकेंड, एक और पॉइंट मिस कर गया मैं, आपको क्लैरिटी हो. क्लास में तो बच्चे पूछ लेते हैं. आइडिया इज कि जो -1 है वो इस इंटरवल में काउंट होगा या इस इंटरवल में काउंट होगा. Actually, in this case, you can count it in any interval. You can count in first, you can count in second. What about 2? Again, either count in this or count in this. But one system, if you follow, it will be very useful and very practical. And the idea is, for any interval, starting should be closed, मतलब including, and end will be open, मतलब not including. So इस interval में starting to -∞ है, we can't do anything, we have to exclude, और second वाले को exclude करते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ less than लिखा है. इन सेकेंड इंटरवल -1 को मैंने क्लोज लिया और 2 को ओपन, और 2 के लिए यहां पे क्लोज लिया और उसके बाद का ओपन. तो द लाइन इज फॉर लेस देन -1. -1 के पहले -2 पे वैल्यू क्या आएगा? -2 पे दिस वैल्यू विल बी +6. स्केल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा बिकॉज हाइट में अपने को +6 जैसा ऑप्शन कम है, तो यहां x और y का स्केल थोड़ा अलग अलग कर दिया. ओके, -1 पे वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा? -1 तो पिक कर नहीं सकते, तो लेट्स से -1.1. -1.1 पे वैल्यू आएगा 3.3. दैट विल बी 3 से थोड़ा ऊपर, उनको ज्वाइन कर दिया एंड दैट इज योर सिचुएशन. -1 की जब बात करेंगे तो -1 पे वैल्यू आएगा 3,
और 2 की बात करेंगे तो 2 पे वैल्यू आएगा वापस 6, ये 6 वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट की बात करें 2 के जस्ट पहले अगर 1.9 की बात करेंगे तो ये क्या आएगा, 1.9 + 4 इज 5.9। तो ऐसे पॉइंट को ज्वाइन करते करते जब आप 2 के जस्ट पहले हो गए तो उसका वैल्यू 6 से जस्ट पहले आएगा। तो आई कैन से कि दैट इज दिस पॉइंट। और आफ्टर 2 इट इज 3x। तो 2 पे वैल्यू आपको मिल चुका है और 3 पे वैल्यू निकालोगे तो 9 आएगा एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ध्यान देना इन दोनों का स्लोप अलग अलग है, इसका स्लोप 1 है और इसका स्लोप 3 है। लेट्स टेक लाइक दिस। सो दैट इज द ग्राफ। थोड़ा गड़बड़ हो गया शायद। अब -1 पे वैल्यू क्या आएगा, -1 पे वैल्यू 3 आएगा। तो -1 पे वैल्यू 3 था तो ये 3 से ज्वाइन करेंगे। दिस इज द ग्राफ। y = 2 mod of x + 1 plus mod of 2 - x is basically this। तो mod का रिमूवल एक का अपना ही एक इंपॉर्टेंस है और ग्राफ प्लॉट करने का अपना इंपॉर्टेंस है। तो दैट will be useful later stage पे काफी यूजफुल आएगा। when you have to remove the modulus we always think of what कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नंबर पॉजिटिव है तो नंबर itself, नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ द नंबर। Let's go for more functions. Okay, so 11th function is greatest integer function. This is called greatest integer function. इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लोर एंड सीलिंग। तो सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, क्यों वो बाद में पता चलेगा। This is written as y = एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x also looks like a box, so we also called it box function. We also call it box function. तो you can be asked कि भाई 2.7 का बॉक्स वैल्यू, 2.7 का बॉक्स क्या होगा। सो इसमें आपको पूरा डेफिनेशन में बोलता हूं। अ फंक्शन दैट रिलेट्स या कनेक्ट्स या मैप्स। अच्छा, इस फंक्शन को वी ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। मैपिंग मतलब मैप करना। और हमने देखा था वेन डायग्राम वाले केसेस में मैपिंग होती है, दिस गोज टू हियर, दिस गोज हियर, दिस गोज हियर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैपिंग। सो अ फंक्शन दैट रिलेट्स, कनेक्ट्स और मैप्स एनी नंबर टू greatest integer less than or equal to the number is called greatest integer function. GIF is a standard notation for this. You will so many times you will see written GIF, it means greatest integer function. तो greatest integer function का मतलब एक ऐसा फंक्शन जो किसी भी नंबर को greatest integer जो कि नंबर से लेस और इक्वल होगा उससे कनेक्ट करने का। Let's take some example. 2.7 का बॉक्स वैल्यू क्या होगा? What is the box value of 2.7? एक ऐसा इंटीजर जो लेस देन और इक्वल टू ये नंबर हो और ग्रेटेस्ट भी हो। इससे लेस देन और इक्वल टू इंटीजर्स की बात करेंगे तो दे आर 2, 0, 2, 1, 0, -1 एंड सो ऑन। तो लेस देन और इक्वल टू नंबर और उसमें से भी ग्रेटेस्ट, और ग्रेटेस्ट क्या है? 2 है, तो दैट इज योर आंसर। सो आइडिया इज कि 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मतलब उसमें से मैक्सिमम कितने इंटीजर्स आप माइनस कर सकते हो। हाउ, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट यू कैन सबट्रैक्ट विदाउट गेटिंग द नेगेटिव आंसर। इफ आई से 3.179 का बॉक्स क्या होगा? तो द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस इज बेसिकली 3। आई कैन से 5 का बॉक्स क्या होगा? तो 5 का बॉक्स यूजुअली फर्स्ट
आंसर आता है सर 4 ना, लेस देन और इक्वल टू, इसमें तो सबसे बड़ा इंटीजर 5 होगा ना, अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आएगा। तो आइडिया इज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए बट लेस देन और इक्वल टू। ऑब्वियसली ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलोगे तब तो इंफिनिटी हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन अ पर्टिकुलर नंबर विल बी इंफिनिटी। तो अगर ग्रेटेस्ट लेना है तो आपको टॉप लाइन रखना पड़ेगा, लीस्ट लेना है तो आपको बॉटम रखना पड़ेगा। तो इन दिस केस वी हैव टू टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर, सो वी आर कीपिंग अ टॉप लाइन एंड दैट इज कि नंबर के ऊपर नहीं जाना है, नंबर या उससे छोटा, लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें ये खुद तो इंटीजर था नहीं, तो वी हैव टू गो डाउन। दिस इज इटसेल्फ एन इंटीजर, तो दैट इज सिंपली दिस। -3 का बॉक्स क्या होगा? -3 का बॉक्स भी -3 होगा। सो लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू नंबर इज -3। अच्छा, पाई का बॉक्स क्या होगा? थिंक ऑफ इट। ई का बॉक्स क्या होगा? थिंक ऑफ इट। -2.7 का बॉक्स, माइनस पाई का बॉक्स, माइनस पाई स्क्वायर का बॉक्स, -√3 का बॉक्स। नेगेटिव वालों में थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट यू विल बी एबल टू मैनेज। तो पाई का बॉक्स क्या होगा? पाई का वैल्यू 3 से थोड़ा ज्यादा होता है, 4 से कम। तो सबसे बड़ा जो इंटीजर इसमें आएगा दैट विल बी 3। ई का वैल्यू होता है 2.7 ... 2.7 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा। यहां तक भी चलो ओके था। निगेटिव वाले में ध्यान से देखना, -2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज एक्चुअली -2, विच इज रॉन्ग आंसर। दिस इज -3। देखना, एक नंबर लाइन बनाते, -3, -2, -1, 0 एंड सो ऑन। -2.7 will be somewhat here. So the greatest integer which is less than or equal to this is -3. तो जो पहला इंटीजर आएगा उसके पहले that will be -3. Now pause the video and complete this. -pi is something -3.14. उसके जस्ट पहले इंटीजर क्या आएगा? -4, -pi स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू इफ यू डोंट नो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 के आसपास होता है। तो दिस इज -9.8 एंड दैट विल बी, पॉज द वीडियो, डू इट ऑन योर ओन, एंड दिस विल बी -2। नाउ टेक सम टाइम एंड थिंक अबाउट इट। पॉज द वीडियो, ध्यान से देखो, समझो, यू विल बी एबल टू मैनेज। सो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपको वैल्यू पता होगी तो आप उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग फॉर ग्राफ। x का वैल्यू 0 लोगे तो उसका बॉक्स भी 0 आएगा। x का वैल्यू 0.1 लिया, 0.1 का बॉक्स 0, 0.2 का बॉक्स वो भी 0, 0.3 का बॉक्स भी 0, 0.9 का बॉक्स भी 0, 0.99999 का बॉक्स भी 0। इन सबको ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही आप 1 पे पहुंचोगे 1 का बॉक्स तो 1 होता है, तो ये ग्राफ अचानक डायरेक्टली इट विल गो टू 1। सी दिस पॉइंट इज इंक्लूडिंग, दिस पॉइंट इज नॉट। 1.1 का बॉक्स 1, 1.2 का बॉक्स 1, 1.3 का बॉक्स 1, 2 के पहले हर एक नंबर का बॉक्स 1, और जैसे ही 2 पहुंचोगे अचानक उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, एंड देन इट कीप्स ऑन गोइंग लाइक दिस। नेगेटिव में भी देखते हैं, -0.1 का बॉक्स -1, -0.2 का -1, तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट समथिंग लाइक दिस। -1 का बॉक्स भी -1, बट -1 से जैसे पहले आएंगे सीधा वो क्या पहुंच जाएगा? -2 पे। What does it look like? It looks like a staircase to heaven. स्टेयरकेस जैसा लगता है, स्टेप जैसा लगता है, स्टेप जैसा लगता है, that's why it is also called step function. There are more step functions, but this is one of them.
सो ग्राफ कैसा है कि स्टेप्स जैसे बने हुए हैं, ये सारी लेंथ अलग अलग आपको दिख रही होगी बट इज एग्जैक्टली वन. First part of all the lines are included and last part is always not included. So that is the graph of y equal to box x. Now I am going to give you some properties along with the definition. Properties की बात करते हैं तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है नेगेटिव नंबर में. नेगेटिव नंबर का बॉक्स निकालना हो तो वैसे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बट इफ नॉट देन वी राइट इट एज माइनस ऑफ बॉक्स एक्स माइनस वन. माइनस एक्स का बॉक्स इज माइनस बॉक्स एक्स माइनस वन बट ओनली इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर. But if x is integer then it is simply minus of box x. उसमें माइनस वन की जरूरत नहीं होती है. एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एक्स क्योंकि x अगर इंटीजर है तो उसका बॉक्स वो नंबर ही होगा. 5 का बॉक्स 5, 6 का बॉक्स 6, 10 का बॉक्स 10, -7 का बॉक्स -7. तो दैट इज वन प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी इज बॉक्स ऑफ x प्लस n is box x plus n where n belongs to obviously integer. कहने का मतलब ये है कि बॉक्स में से इंटीजर कैन बी टेकन आउट. इंटीजर कैन बी टेकन आउट ऑफ बॉक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द फर्स्ट वन कि भाई -2.7 का मुझे बॉक्स लेना था. -2.7 का बॉक्स विल बी माइनस बॉक्स ऑफ 2.7 -1. 2.7 पॉजिटिव है उसका बॉक्स निकालना आपको आता है एंड दैट इज -2. व्हाट डू वी गेट? -3. बट इफ इट इज -5 का बॉक्स, -5 का बॉक्स होगा माइनस ऑफ बॉक्स 5 और सिंपली -5 बिकॉज x इज इंटीजर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं. दिस वॉज प्रॉपर्टी 1 and this is property 2. Property 2 if we talk about, I can say कि भाई 3.9 का जो बॉक्स है उसमें से 1 बाहर निकाला तो 2.9 बॉक्स हो गया. It's not important that you take all the integer out. Whatever integer you want, you can take. 2 बाहर निकाला तो बचा 1.9. If I take 3 outside, I will get 0.9. If I take 4 out, what do I get? 4 तो नहीं निकाल सकते, डेफिनेटली निकाल सकते हैं. बचेगा क्या? -0.1 एंड सो ऑन. तो यू कैन राइट इट इन एनी वे यू वांट. बट द होल आइडिया इज कि पार्ट वाइज क्यों निकालेंगे? वॉट एवर इंटीजर यू सी वी टेक द होल इंटीजर आउट, नॉट इन पार्ट्स बट इट कैन बी डन इन पार्ट्स ऑल्सो. एंड नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 3.9 बार का बॉक्स क्या होगा? 3.9 बार का बॉक्स 4 होता है. 3.9 बार का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 4 नहीं होता है. 3.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4. इफ यू डोंट नो दिस देन रेफर बेसिक मैथमेटिक्स वाला वीडियो. देयर यू विल फाइंड दिस इन द रैशनल एंड इर्रेशनल वाले पार्ट में. रैशनल इर्रेशनल नंबर जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया होगा कि 3.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4, not less than 4, and so its box value will also be equal to 4. So that is your greatest integer function. Okay, so 11th was greatest integer function. Now we are going for 12th one. 12th की बात करते हैं तो that is called fractional part function. भाई जब इंटीग्रल पार्ट आ गया, हाँ दैट वाज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.7/2, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, आल्सो नोन एज इंटीग्रल पार्ट. जब इंटीग्रल पार्ट हो गया तो फ्रैक्शनल पार्ट भी चाहिए होगा. सो आइडिया इज कि द इंटीग्रल पार्ट वाज बॉक्स एक्स राउंड स्क्वायर ब्रैकेट, दिस फ्रैक्शनल पार्ट इज कर्ली ब्रैकेट. So this is called fractional part of number, fractional part of x, which is actually number minus उसका box.
किसी भी नंबर में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो तो बचेगा क्या? वी आर लेफ्ट ओवर विद फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो दैट विल बी 2.7 माइनस बॉक्स ऑफ 2.7. 2.7 minus box of 2.7 is 2 and the answer is 0.7 which is clearly the fractional part. पॉजिटिव में बहुत क्लियर होता है, नेगेटिव में प्रॉब्लम आएगा. अच्छा 3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? सोचो 3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 because 3 minus box of 3. Box of 3 is 0, so I can say box of 3 is 3, so 3 minus 3 will be actually 0. -2 का फ्रैक्शनल पार्ट वापस से इंटीजर है, इंटीजर में कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, 0. एंड द पॉइंट इज -2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? दैट इज योर वर्क. Pause the video and try to solve this within 30 seconds. Okay. I am going to solve this and the answer is x minus box x. -2.7 का बॉक्स अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज -3. So what do I get? 3 minus 2.7 and that is 0.3. That is 0.3. 0.7 नहीं, minus 0.7 भी नहीं, it is comes out to be 0.3. That you have to understand कि -0.7 का जो इंटीग्रल पार्ट है वो -2 नहीं है. So we are not left with 0.7 और -0.7. इसका इंटीग्रल पार्ट -3 है. तो जब -3 बाहर निकालोगे तो what you get is 0.3. तो वापस से वही स्टोरी है, पॉजिटिव में ओके है, इंटीजर में ओके है, नॉन इंटीजर नेगेटिव में थोड़ा प्रॉब्लम है. सो आई विल टेल यू प्रॉपर्टी एंड द प्रॉपर्टी 1 इज फ्रैक्शनल ऑफ -x. चलो pause the video again and think about it कि -x का fractional part क्या होगा? What would be fractional part of -x? And that is minus of fractional x minus 1 if x is not integer. And if x is integer then it is simply 0. कैसे आया? आइडिया इज वेरी सिंपल. किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो नंबर माइनस उसका बॉक्स. इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है. दैट फॉर्मूला इज डिफरेंट फॉर दीज टू केसेस. वही दोनों यूज करेंगे तो यू विल गेट दिस. दैट इज योर होमवर्क. यू हैव टू डू दिस. एंड सेकेंड इज कि फ्रैक्शनल x प्लस n विल बी व्हाट? योर चांस. फ्रैक्शनल x प्लस n क्या होगा? पॉज कर लो और सोच लो और लिख लो. आई एम गोइंग टू राइट एंड दैट इज सिंपली फ्रैक्शनल x. आइडिया वाज कि बॉक्स के केस में इंटीजर वाज कमिंग आउट. इन फ्रैक्शनल इंटीजर विल बी गॉन बिकॉज इंटीजर को से फ्रैक्शनल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. यू कैन सिंपली रिमूव एनी इंटीजर. सो दैट इज योर प्रॉपर्टी. एंड नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस. इसका ग्राफ कैसा होगा? जीरो का बॉक्स तो जीरो का फ्रैक्शन 0 होगा. 0.1 का फ्रैक्शन 0.1, 0.2 का फ्रैक्शन 0.2, 0.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 तक जो भी नंबर है उसका फ्रैक्शन विल बी द सेम नंबर. लेकिन जैसे 1 आओगे 1 का वैल्यू 1 का फ्रैक्शन वैल्यू सीधा 0 हो जाएगा. 0.999 तक 0.999 जैसे 1 पहुंचे तुरंत 0 हो जाएगा. 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.3 का 0.3 and it keeps on going up to just before 2. और जैसे 2 पहुंचे उसका फ्रैक्शनल वैल्यू वापस से 2 हो गया and then again it will go on like this, then again this and it goes on and on. Similarly, negative part में भी आएगा and it will be exactly like this.
ये हाईएस्ट पीक जो है वो 1 है और ये 0 है, एंड दैट इज योर फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, एंड दैट इज इट। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है वो देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए और उसकी प्रॉपर्टी देख ली, एंड देन वी विल यूज इट एट सो मेनी टाइम्स, वो बाद में करते हैं। ओके, नेक्स्ट। Okay, so 11th was greatest integer function, next was fractional part function, and 13th one, the next one is called Singham function. You must have seen the movie named Singham, and this is actually Singham function. Singham function is basically this. Not exactly Singham, this is basically Signum function. To be more precise, to be more accurate, this is actually called Sinum function. Sinum function. देखो SIGN is basically sine. So this is actually Sinum function. People call it Signum function. I call it Singham function. So that's okay. So this is y equal to SGN is a symbol for Sinum and then x. Y equal to Sinum x. अब Sinum x क्या होता है? Sinum x क्या होगा? किसी भी नंबर को उसके साइन से कनेक्ट करेगा, अ फंक्शन दैट कनेक्ट एनी नंबर टू इट्स साइन। बट द आइडिया इज कि जो फंक्शंस वी आर डूइंग, इट इज फ्रॉम रियल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, सो वी हैव टू कनेक्ट इट टू सम नंबर। सो द आइडिया इज कि नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है और नंबर जीरो हो सकता है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसको प्लस से कनेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव नंबर को माइनस से कनेक्ट करना चाहिए, और जीरो का तो कोई साइन होता नहीं। सो व्हाट वी डू इज कि इंस्टेड ऑफ प्लस वी कनेक्ट इट टू +1, इंस्टेड ऑफ माइनस वी कनेक्ट इट टू -1, और जीरो का कुछ नहीं होता है तो उसको जीरो से कनेक्ट कर दिया। तो फॉर एवरी पॉजिटिव नंबर यू विल गेट अ फिक्स नंबर 1, फॉर एवरी नेगेटिव नंबर यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू -1, and for 0 you will get 0. Now I am going to draw this. Your turn. Pause the video again and try to draw this. 0 का वैल्यू 0 होगा, 0 के बाद कोई भी नंबर है, एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट 1, और 1 पे यहाँ ओपन होगा बिकॉज 0 पे वैल्यू 1 नहीं है, 0 पे वैल्यू 0 है, और फॉर ऑल नेगेटिव इनपुट्स वी आर गोइंग टू गेट -1. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ Sinum function, SGN Sinum x. For every positive number we are getting +1, for every negative input we are getting -1, and for 0 we are getting 0. अब ये साइनम को लिखने के एक दो और तरीके भी होते हैं. We also write it as mod x upon x, or we can say x upon mod x, mod x upon x, or x upon mod x, and that is one part when x is not equal to 0. But if x equal to 0, we cannot include here, क्योंकि x का 0 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, which cannot be. Any denominator cannot be equal to 0, so we have to separate this case, and that's it. देखना mod है, ओहो mod हटाना हमें आता है, कैसे हटाते थे? We have to take the cases कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो x अगर पॉजिटिव है तो it will be x नंबर से, x by x is 1, और अगर नंबर नेगेटिव है तो mod x will be -x and -x upon x will be -1, और 0 के लिए तो 0 है. So this is another way of writing this function which is called Sinum function. Okay, so now we are going for trigonometric functions. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में वी ऑल नो दैट देयर आर 6 फंक्शंस, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x. ये सब के बारे में आपको सब कुछ पता है. बाय नाउ आई होप कि यू हैव डन कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपका हो चुका होगा, रेशियो, फंक्शन आइडेंटिटी, आपको ग्राफ भी पता होगा.
तो आई एम अज्यूमिंग दैट, इफ नॉट तो आप ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखिए, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फंक्शन है उसके बारे में सब कुछ बताया गया है. बट at this moment I am going to draw the graph because that is what I am going to use in later videos. तो सबसे पहले y equal to sin x का let's talk. y equal to sin x का जो ग्राफ होता है that wave जैसा होता है वो आपको पता है, but one important part of that is कि 45 की एक लाइन बनाने के बाद उसके टेंजेंशियल you should draw this. बिकॉज जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 45 डिग्री पे कट करता है एक्स एक्सिस को. Now the maximum value will be 1, minimum value is -1, this would be pi, this will be 0 and pi by 2. That is graph of y equal to sin x. Then y equal to cos x. y equal to cos x का ग्राफ भी एग्जैक्टली sin x जैसा ही होता है, सिर्फ थोड़ा शिफ्टिंग होता है. शिफ्टिंग मतलब ग्राफ को लेफ्ट में 45 डिग्री 90 डिग्री शिफ्ट करेंगे, इट विल लुक लाइक दिस. दिस इज 0, pi by 2, maximum 1 and minimum -1. So that is the graph of sin x and cos x. Next comes tan x. See, tan x का जो ग्राफ है that is vertical graph. Sin का ग्राफ is basically horizontal, tan का ग्राफ vertical because sin cos का value always lies between -1 and 1, but tan cot का value goes to infinity. तो what we do, ग्राफ डायरेक्टली तो आप बना सकते हैं, but there is something you need to do, that is एक 45 की लाइन, फिर एक 90, then 145 का लाइन, then 190, 45 हो गया 90 and 45. Alternately draw 45 90 45 90. 90 वाली लाइन को पूरा एक्सटेंड कर दो. Extend this line which is at angle 90 straight. And then ये 45 वाली लाइन है, that will give you the graph. कैसे? ये 45 वाली लाइन है, इसको कर्व करते हुए you have to draw this and like this. Similarly here also, and left side, right side and left side. This is 0, this is pi by 2, so this will be pi and so on. This is the graph of y equal to tan x. Similarly, we can draw y equal to cot x also. Cot x में 90 and -45, फिर 90, फिर -45. ये 90 हो गया है तो -45, फिर 90 वाले ग्राफ को पूरा एक्सटेंड कर लो. ये ऑलरेडी 90 एक्सटेंडेड है. फिर क्या करना है, सिमिलरली 45 वाली लाइन को कर्व फॉर्म में ज्वाइन कर देना है, एंड दैट इज योर ग्राफ ऑफ कॉट एक्स. टैन के ग्राफ का उल्टा है, थोड़ा टैन का थोड़ा उल्टा है, दैट इज कॉट एक्स का ग्राफ. Then come this was y equal to cot x. Then we have y equals to sec x, and then we have y equals to cosec x. Sec and cosec are very simple graph. Not exactly, but draw करना बहुत आसान है. Sin का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है. I am going to use them. कैसे? Let me show you. Sec is basically reciprocal of cos. तो एक मैं cos का ग्राफ बनाता हूं. Let me draw y equal to cos x, और using this I am going to draw sec x. कैसे? sec का cos का वैल्यू जहां जहां 0 है वहां पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो.
wherever cos x is equal to 0, draw a vertical line there. ये जो वर्टिकल लाइंस हैं दे आर बेसिकली टैंजेंट एट इंफिनिटी, दे आर कॉल्ड असिम्प्टोट्स. बट अभी वो नहीं करना है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हाइपरबोला पढ़ेंगे, इन चैप्टर हाइपरबोला, यू विल फर्स्ट टाइम लिसन हियर दिस टर्म कॉल्ड असिम्प्टोट, बट हियर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ना ध्यान से देखना, ये ग्राफ है इन दोनों के बीच में, इसके पीक से स्टार्ट करो और इसका उल्टा कर दो, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है. तो ये ग्राफ का उल्टा क्या ऐसा हो गया, द डिफरेंस इज इसका हाइट 1 था, इसका हाइट इंफिनिटी होगा. देन यहां पीक से स्टार्ट करो ऊपर, एंड दैट इज योर sec x. एंड व्हाट वी डू हियर, अगेन डाउन, and that black part is basically graph of sec x. This green part was y equal to cos x. The black part is y equal to sec x. Similarly, you have to draw y equal to cosec x. Cosec x will be similarly reciprocal of sin x, so that you would be able to draw on your own. तो ये है ग्राफ हो गए साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक. आफ्टर दिस आई एम गोइंग फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर वो फिनिश होगा. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. y equals to sin inverse x, y equals to cos inverse x, y equals to tan inverse x, y equals to cot inverse x, y equals to sec inverse x, and y equals to cosec inverse x. These are some functions which are inverse function of trigonometric function. Trigonometric function is okay with you, but inverse function क्या होता है that you don't know. तो दैट आई विल कवर लेटर कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बट ये कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है दैट वी आर गोइंग टू कवर है. तो ग्राफ के हिसाब से पहले ग्राफ देख लेते हैं, फिर उसके बारे में कब, क्यों, कहाँ, कैसे है वो सब वी विल डिस्कस. साइन एक्स इनवर्स एक्स है. साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ में भी ये 45 की ही लाइन बनती है. इट विल गो लाइक दिस एंड लाइक दिस, दैट्स इट. This will come to minus pi by 2. Maximum it will go up to pi by 2. This point is plus 1 and this point is minus 1. That is the graph of sine inverse x. Next is y equal to cos inverse x. Cos inverse का ग्राफ मैक्सिमम पाई तक होगा. 0, pi by 2, एक 45 की लाइन, उसके साथ इधर नीचे, एंड दिस अप. दिस इज पाई, दिस इज 0. दिस लेफ्ट मोस्ट पार्ट इज -1, राइट मोस्ट पार्ट इज +1. tan inverse x. tan inverse x, again tan x का ग्राफ was at 45 degree. tan inverse का ग्राफ will also be 45 degree. But before that, draw this horizontal line at pi by 2 and minus pi by 2. This will be something like this, and this will be again smoothly like this. ये y equal to tan inverse x का ग्राफ है. If I talk about cot inverse x, again ये maximum pi तक होगा. 45 पे -45 का लाइन, एंड देन दिस स्मूथली लाइक दिस. ये y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ हो गया. देन आई एम गोइंग फॉर सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स. लुक क्लोजली. दिस इज अ डॉटेड लाइन एट -1, डॉटेड लाइन एट +1, and let's say this is pi.
सिमिलरली यहाँ पे dotted at -1 and +1, then at π/2 and at -π/2. So this is +1, -1, π/2 and -π/2. I am going to draw, अच्छा एक और आइडिया, एक और स्टेप, π/2 पे ये एक ऐसी डॉटेड लाइन और बना लेने की। सेक इनवर्स का ग्राफ जो होगा दैट विल बी लाइक दिस एंड देन लाइक दिस। वर्टेक्स पे ये वर्टिकल जैसा होता है, यहां भी वर्टेक्स पे ये वर्टिकल जैसा होगा, दैट विल नॉट बी 45 डिग्री। In this case, if you see, so this will be something like this, and then it will be something like this. So these are the graph of sine inverse, cos inverse, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x and cosec inverse x. ये सारे ग्राफ्स के बारे में वापस से we will discuss. I will take one by one graph I will take and I will discuss all those things. So this is your standard functions. Total we have covered 28 or 1 by x square if I add, that is 29 graphs. इसके अलावा ग्राफ में there are no limit to graph. There are so many different graphs that we can make. But ये basic graph अगर आपको समझ में आ गए तो will be able to manage the whole calculus very easily, very smoothly. Graphs are actually very important. Graph अगर clarity होगी, because graphs are the way to look the question. क्वेश्चन देख करके समझ में ज्यादा आएगा, सोचने से सुनने से ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती. बट इफ यू सी कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. लाइक व्हेन आई से द ग्राफ इज इंक्रीजिंग, यू विल से यस इट इज इंक्रीजिंग. बट इफ आई से sin inverse x is increasing, you will say I don't know what does it mean. You see increasing, you see decreasing, you see increasing, you see decreasing, you see increasing, you see decreasing. So there are three graphs which are increasing, 1, 2, 3. There are three graphs which are decreasing, that is 1, 2, 3. So there are so many things that we can understand. What else can we understand from this? Actually, I will say everything. So let's start with one idea, and that is फंक्शन का डोमेन क्या होता है. डोमेन इज दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वो सारी वैल्यूज, सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड ओवर द रियल ऑपरेशन. फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू होनी चाहिए. मतलब ग्राफ जहां से जहां तक हो, ग्राफ का पूरा जो कवरेज होगा दैट विल बी एक्चुअली फंक्शन का डोमेन. बिकॉज यू सी -1 से 1 के बीच में तो हमको वैल्यूज मिल रही हैं. वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ y बिटवीन -1 and 1, बट बिफोर -1 and after +1 there is no value of y. So what are the values of x for which we are getting the values of y in first case, and that is -1 to 1, and that is called domain of this function -1 to 1. And codomain we usually always take as R. Codomain is not very important concept. Codomain we always take as R until stated otherwise. अगर क्वेश्चन में ही कुछ और दिया है तो बात अलग है. If it is not mentioned and not standard, then we take it as R. Not mentioned तो okay, but not standard मतलब जैसे रूट एक्स, रेडिकल साइन याद होगा आपको. स्क्वायर रूट फंक्शन में स्टैंडर्ड है कि कोडोमेन विल बी 0 to infinity, 0 क्लोज, इन्फिनिटी ओपन. तो रूट एक्स में आपको वही लेना पड़ेगा. बट बाकी फंक्शंस में व्हेन इट इज नॉट मेंशन, यू कैन टेक इट एज आर. इन दिस केस व्हाट यू सी डोमेन, in this case also we see that कि domain is again -1 to 1. कोडोमेन को तो R ही ले लेते. In this case, this case, this case, this case, this way everywhere we are going to write the domain and the codomain. Along with that, we will cover range also. So we will do domain, we will do codomain, we will do range, and
then one, many one, into, onto, odd, even, periodic. मतलब so many things that we are going to do for all these graphs. तो आइडिया है कि ये सारे ग्राफ आपको याद होने चाहिए. These 28, 29 graphs should be बिल्कुल clear in your mind. You should be able to draw them within 5 minutes. Within 5 minutes, you should be able to draw all these graphs with the standard definition. कि भाई आपको अगर पॉइंट tan इनवर्स x है, अगर ये 45 डिग्री का है तो 45 ही होना चाहिए. You cannot just draw it at 80 डिग्री. तो ये फिनिशिंग पॉइंट के साथ you should be able to draw all these in 5 minutes. If you can do that, I can be sure that you are going to get to a good college. So जितनी प्रैक्टिस करनी हो करो, but you should be able to draw all these within 5 minutes on your own. बिना देखे आपको बनाना आना चाहिए. पहले प्रैक्टिस करो, याद करो, एक बार याद हो जाए तो फिर 5 मिनट के अंदर फटाफट सारे बन जाने चाहिए. तो these graphs should be very clear in your mind. And then in the next video, I am going to discuss about the other things, and that is domain, codomain range, and so on. So thank you.